पूरी दुनिया एक डॉट की शक्ल में थी। यू नो डॉट, बा के नीचे एक नुक्ता, वो डॉट होता है। WWW के बाद बिंदी लगाते हैं, उसे डॉट कहते हैं। पूरी दुनिया एक डॉट की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है और चंद्रपुर बन जाता है, इंडिया बनता है, अमेरिका बनता है, डरबन बनता है, एशिया बनता, अंटार्कटिका बनता, आसमान बनता, जमीन बनती। ये कौन बोल रहा? साइंटिस्ट बोल रहे हैं। कितने साल पहले की बात है? 13.8 बिलियन ईयर से। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 30.8 बिलियन ईयर्स एगो दुनिया एक डॉट में थी। क्या ये बात सही है? आपका दिमाग क्या कहता है? लेकिन मैं यहां ये बताऊं मदरसा शहाबिया के ग्राउंड में कि ये तो साइंटिस्ट ने कहा। हम जरा आलिम साहब से भी पूछ लेते हैं, हम जरा मुजद्दिद साहब से भी पूछ लेते हैं, हम जरा अपने लीडर और रहनुमा से पूछ लेते हैं, सहाबी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में हर क्वेश्चन का आंसर है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। Undoubtedly we have sent down Holy Quran and surely we are protecting it. अक़ीदत और महब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत और वाफ़ना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान, it is guiding book for whole ummah. Holder of Quran named Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam. He is beautiful person in all department, by character, nature, looking, walking and other activities. Hazrat Hassan bin Sabit said, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा स्मार्ट, जीनियस, माइंडेड मेरी आंखों ने देखा नहीं। आपसे ज्यादा गुल्लुक धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। हसन बिन साबित का ये चैलेंज है। There is no beautiful person exception Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. In past, in present, and never be in future. A question arises: in this world, many ummah, exception believers, we are Muslim, accept and respect conversation of the Hassan bin Sabit,
But there is Supreme Court of India also. There is Constitution of Durban also. There is Constitution of Libya also. There is Constitution of America also. Judge of Supreme Court in America can ask, "Oh Hassan bin Sabit, did you see face of Adam alayhi salam?" I replied, "No." "Did you see face of Musa alayhi salam?" I replied, "No." "Did you see face of Newton scientist?" Replied, "No." "Einstein scientist?" Replied, "No." Then how can prove the prophet beautiful they no longer, good look they no longer, handsome than all humankind? 1,25,000 messengers we are about to send down by Allah. At this time, 7 Arab people are living in this world. About 7 Arab people. Hazrat Hassan saw some people, company of the Prophet. I think 1 lakh, 2 lakhs. He challenged biggest. Hazrat Hassan bin Sabit फरमाते, "Don't worry, follow me. I have proof. I have. Let's go towards leader of angels named Jibreel alayhi salam से पूछते हैं, "ओ जिब्रील, we want to ask you. You are watching whole ummah, all people, all messenger, all पैगंबर. Tell me, who is beautiful? Who is good look? Who is handsome? We are confused." Hazrat Jibreel alayhi salam said, "Qallabtul arda mashariqaha wa magharibaha lam ajid rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alayhi wasallam." I searched towards east and west and south and north. I did not see anyone better than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजरत जिब्रील फरमाते हैं, मैंने पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर को देखा, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम का सेंटेंस, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, "कल्लबतुल अर्दा", मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा। Why? People are living on earth, not under earth. What is the meaning of under earth? Side earth? उलट पलट के देखने की क्या जरूरत है? There is mystery, big mystery. Jibreel alayhi salam knows. One time, Newton will be born. Einstein, scientist, Google, Twitter, YouTube, Facebook, new planet like Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Before 14th century, Jibreel alayhi salam saw and watched and looked every planet. ताकि 1400 साल के बाद में आइंस्टाइन की कोई औलाद ये न दावा कर
दे कि फला प्लेनेट पर तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई है। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर प्लेनेट को उलट पलट करके देखा। एंड ट्रांसलेटर ऑफ जिब्रील born at Bareilly on 10 Shawwal 1272, named Imam Ahmad Raza Khan, said यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, ऐसा नहीं कि वो इंतकाल कर गया, वो आज भी है। वही लेकर पहले आते थे, सिदरा के मकी है वो। गोया हम ये दावा कर सकते हैं कि जिसने नबी को लाइव देखा वो अभी भी जिंदा है। दुनिया की अदालत में अगर कोई कहे कि शो योर प्रूफ कि नबी इज बिगेस्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, हम जिब्रील अलैहिस्सलाम को पेश कर देंगे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हयात दी। एक हिकमत यह भी है कि कयामत तक, आफ्टर हियर तक, टिल आफ्टर हियर, टिल रिजरेक्शन, जब भी बात आएगी कि कोई गवाह पेश करो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गवाह चश्मदीद मौजूद है। कुरान शरीफ 114 सूरत है, 23 साल में नाजिल हुआ, 30 पारे, 30 पारे, 77,450 कलीमा, 3 legs हरूफ, words, 1,000 does and 1,000 doesn't. ज़बूर के अंदर 150 सूरत, 150 ज़बूर के अंदर। होल्डर नेम दाऊद अलैहिस्सलाम, सेंट डाउन ऑन दाऊद। तौरात 1000 सूरत है, and every सूरत has 1000 आयत। मूसा अलैहिस्सलाम से ओ अल्लाह, हाउ कैन रीड माय उम्मत, मेरी उम्मत कैसे पढ़ेगी? इतनी मोटी, ज़ख़ीम, वेटे, लॉन्ग। अल्लाह said, ओ मूसा, I will send biggest book than your book, then Torah, then Injil, then Zabur. मूसा, मैं इससे भी मोटी किताबें नाजिल करने वाला हूं। मूसा ask, on which, ओ अल्लाह, किस पर यार ए अल्लाह? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, Allah said, I will send on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मूसा अलैहिस्सलाम पूछते उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? How can read, how can memorize his ummah? उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? रब ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैं उसे आसान कर दूंगा, इतना आसान करूंगा कि शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी only in 3 months memorize the whole Holy Quran, only in 3 months। मुजद्दिद
Shawkani, in 3 months, memorized all Holy Quran. Imam Shafi'i, in 3 months, memorized all Holy Quran, all surah. Imam Muhammad, you know, student of Imam Azam Abu Hanifa, he memorized only 7 days. Only in 7 days, whole Quran. इतना आसान कर दिया अल्लाह ने कि इमाम मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक फर्द सिर्फ 7 दिन में पूरा कुरान याद कर लिया। कुरान शरीफ, it is not only for reading book, it is understanding. It is constitution of our life, rule of life, system of life, rule of nikah, rule of business, rule of marriage, rule of talking, rule of minding, rule of thinking. Every rule written in Holy Quran. Allah says, "Ma farratna fil kitabi min shay." मैंने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। Everything included in Holy Quran. नज़्ज़लना अलैका किताब तिब्याना लिकुल्लि शै. Our children are going to convent, St. Pius, St. Joseph, Little Flower, convent, Christian missionary. They are reading CBSE pattern. A for apple, B for ball, C for cat. Rain, rain, go away. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. Our children are reading. But you know, जिस बुक को हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, those book which crossed our children, फिर उसके साथ क्या होता है? उन बुक को our parents give to other person, sell. वो भंगार वाले को दे देते हैं, ठेले वाले को दे देते हैं, and that man give to hotel, वो होटल वाले को दे देता है। क्या लिखा हुआ था कागज में? तो जोनी जोनी अस्पा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। होटल में गया वो कागज, जिसने पढ़ा, he has been collector. He been IAS, IPS, Rajput, barrister, MBBS, MD, BUMS, BMS, doctor. But that book, वो होटल में जब जाता है तो होटल वाला उसकी कटिंग करता है और छोटे छोटे साइज बना के उस पर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेचता है। ये होता है। We are eating samosa. After that, we threw paper in dustbin, in way, in gutter. जिसने पढ़ाया, जिसने कलेक्टर बनाया, वो गटर में है, वो नाली में है, वो डस्टबिन में है। और जो कलेक्टर बना है वो 1 लाख रुपया तनख्वाह, 2 लाख रुपया तनख्वाह। कलेक्टर सैलरी is 1 lakh.
he has Scorpio, iPhone, other opportunities, but जिसने पढ़ाया, reader is in dustbin. There is no clay, there is no insect. लेकिन उसी कागज पर, on that paper, exception little flower, twinkle twinkle, ABCD, Johnny Johnny. If you write on that paper, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, then Allah say, don't touch it without wuzu. अगर उसी पेपर पर ABCD की जगह अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई हो कुरान की सूरत, तो अल्लाह फरमाता है बगैर वुजू के हाथ भी मत लगाना। जिस पे ट्विंकल ट्विंकल लिखा था वो नाली में, नजासत में, सड़क पे, डस्टबिन में, और जिस पे सूरह फातिहा लिखी थी उसको नापाक आदमी, काफिर तो बड़ी बात, और मोमिन और वली और सय्यद और आलिम और फाजिल और मुफ्ती और मुजद्दिद कैन नॉट टच विदाउट वुजू। वक्त का मुजद्दिद भी बगैर वुजू के उस कागज को हाथ नहीं लगा सकता, और उस कागज को एक इंसान सिर्फ छूना चाहता है तो वुजू करता है, फिर चूमता है, सर पे रखता है। जिसने कुरान की इतनी ताज़ीम की, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद कर देता है। जिसने भी कुरान की ताज़ीम की। अब इसी से अंदाजा लगाए कि आलिम का मर्तबा बड़ा हुआ या कलेक्टर का मर्तबा बड़ा हुआ। आलिम का मर्तबा, क्योंकि जिसने पढ़ाया उसकी भी ताज़ीम करता है। कलेक्टर ने जिस किताब को पढ़ी उसकी ताज़ीम नहीं किया उसने। एक और एग्जाम्पल दूँ आपको। 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया में, और वो साइंटिस्ट पैदा होने के बाद 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद दुनिया के सामने एक थॉट देता है कि इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। क्या मतलब हुआ इसका, आईडी, ईगो, सुपर ईगो का? There is 3 special thing, basic thing, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। जब आप चाय वाले की दुकान पर जाकर चाय पीते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, आपने कहा कि देख नहीं रहा है, मैं पैसा नहीं देता चाय का, ये आईडी है। फिर ख्याल आया नहीं, इट इज हराम हराम हराम, ये हराम है, उसकी चाय का पैसा हमें देना चाहिए। फिर ख्याल आया जाने नहीं देते, बीच में थे। वो जो मन कर रहा ना आपका कि दे देना चाहिए, उसे ईगो कहते हैं, और जो बोल रहा नहीं देना चाहिए उसे आईडी कहते हैं। अगर आप नहीं दिए तो आईडी के गुलाम हुए, आईडी की बात मान लिया, और अगर दे दिया जाकर के तो सुपर ईगो हो गया। यह है आईडी, ईगो, सुपर ईगो। नफ्स, कल्ब, रूह भी कहते हैं। यूं भी कह ले कि पहले आप देखते हैं, फिर ख्वाहिश पैदा होती, फिर करते हैं। पहले देखते हैं, फिर ख्वाहिश पैदा होती, फिर करते हैं। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कितने साल? 25 साल। नोबेल प्राइज का मालिक बना, दुनिया ने साइंटिस्ट घोषित कर दिया उसको।
ये जो मदरसा दिख रहा है ना, इसमें पढ़ने वाले का कमाल देखें। ठीक उसी साल 1856 में एक बच्चा पैदा होता है हिंदुस्तान में। 1856 में एक बच्चा पैदा होता है हिंदुस्तान में, और वो बच्चा एबीसीडी पढ़ने नहीं गया, स्कूल नहीं गया, कॉन्वेंट नहीं गया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अभी दारुल उलूम में भी नाम नहीं लिखा है, क्योंकि 2.5 साल का है। पैदा हुआ 2.5 साल उम्र। हाँ, माँ बाप अलिफ बा तासा वाले थे, कुरान शरीफ वाले थे, उर्दू वाले थे, मसाइल वाले थे, दीनी तालीम घराने में, दीनी तालीमी घराने में पैदा हुए। 2.5 साल की उम्र में उस बच्चा के सामने से तवाइफ निकली, वेश्या औरतें निकली। 2.5 साल के बच्चे ने दामन उठा करके अपनी आंखों को छुपाया, दामन से, कुर्ते का जो दामन होता है उससे अपनी आंखों को छुपाया। वेश्या मुस्कुराने लगी, वारे मियां, जिसको छुपाना चाहिए उसको खोल दिया, और जिसको खुला रहने देना था उसको छुपा लिया। तो उस बच्चे ने कहा, सुनो, पहले आंखें बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह करता है। 3 किस्में हो गई। आंखें पहले बहकती है, दिल मगलूब होता है, फिर इंसान गुनाह की तरफ जाता है। नफ्स, कल्ब, रूह। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद सिगमंड फ्राइड साइंटिस्ट जो नजरिया देता है, एबीसीडी पढ़ के अलिफ बा तासा वाले घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा 2.5 साल की उम्र में वो नजरिया दे रहा है, और ये कोई और बच्चा नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नामाए अहले सुन्नत। पता क्या चला? मदरसे की अहमियत तो समझे। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। ये जगह का क्या नाम है? चंद्रपुर। और मदरसे का शहाबिया मदरसा। सैयद शहाबुद्दीन की तरह मस्जिद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सैयद शहाबुद्दीन के साहबजादे को देख रहे हैं, सैयद हिदायतुल्लाह को, कि वो किसी भी एक इंसान के जरिए बड़ा काम हो जाता है। और आप लोग भी कर सकते हैं, बस डेयरिंग और हिम्मत की जरूरत। और नहीं हो पाता तो कम से कम जो अच्छा करे उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये जो चंद्रपुर है, ये कितने साल पहले बना? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि 50 साल पहले चंद्रपुर का व्यू कैसा था, लोकेशन कैसा था, 100 साल पहले आप अपने वालिद साहब से पूछे 100 साल पहले तो नहीं बता पाए। 200 साल पहले चंद्रपुर कैसा था? लेकिन साइंसदानों ने इसको लिखा है। In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe is where it began. पूरी दुनिया 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एक डॉट की शक्ल में थी। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ, उधर कहां देख रहे हैं भाई? पूरी दुनिया एक डॉट की शक्ल में थी। यू नो डॉट, बा के नीचे एक नुक्ता, वो डॉट होता है। www के बाद बिंदी लगाते हैं, उसे डॉट कहते हैं।
पूरी दुनिया एक डॉट की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है और चंद्रपुर बन जाता है, इंडिया बनता है, अमेरिका बनता है, डरबन बनता है, एशिया बनता है, अंटार्कटिका बनता, आसमान बनता, जमीन बनती। ये कौन बोल रहा? साइंटिस्ट बोल रहे हैं। कितने साल पहले की बात है? 13.8 बिलियन ईयर से। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 30.8 बिलियन ईयर्स एगो दुनिया एक डॉट में थी। क्या ये बात सही है? आपका दिमाग क्या कहता है? लेकिन मैं यहां ये बताऊं मदरसा शहाबिया के ग्राउंड में कि ये तो साइंटिस्ट ने कहा। हम जरा आलिम साहब से भी पूछ लेते हैं, हम जरा मुजद्दिद साहब से भी पूछ लेते हैं, हम जरा अपने लीडर और रहनुमा से पूछ लेते हैं, सहाबी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में हर क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए हम लोग किसी साइंटिस्ट का सजदा नहीं करते, हम अल्लाह का सजदा करते हैं। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर, ये मेरी शान है। अल्लाह का सजदा करते हैं, सिर्फ अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आस्क्ड, या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन, देन आई विल वर्ल्ड। अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर, इन्ना अल्लाह तआला क़द खलक़ नूरा नबिय्यका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका अन-नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लुक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला 4 अज्ज़ा फख़लक़ मिन अल-जुज़इ अल-अव्वल अल-लौह ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع إلى 4 أجزاء إلى آخر। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जमीन, आसमान, चंद्रपुर, इंडिया, डरबन, इटली, बहरैन, इमारात, दुबई, सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरोवर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता क्या चला? नबी के नूर से दुनिया बनी। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि डॉट से दुनिया बनी, और नबी फरमाते हैं कि नूर से दुनिया बनी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डॉट ही नूर मुस्तफा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो डॉट ही नूर मुस्तफा? यस यस यस, दैट डॉट लाइट ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वन डे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड, ओ जिब्रील, व्हाट इज योर एज? जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी है? रिप्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी। हाँ, एक तारा, एक स्टार, और ये बताइए जमीन से स्टार डॉट की तरह दिखता है? एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। जिब्रील के जवाब को सुन के नबी फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो स्टार मैं हूं, मैं हूं, मैं। सुभान अल्लाह। पता चला जिस डॉट से दुनिया बनी है वो डॉट लाइट ऑफ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So we have to learn Islamic education. We have to understand Holy Quran, Bukhari Sharif, Muslim Sharif. Allah created many paygambars, messengers, and give one basic message. Allah is the one. He has no father, no mother, no sons, no daughter, no children. This message conveyed to Adam
and its final form revealed the last messenger Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam. After the prophet, nobody will come in form of the Nubuwwah, in form of Nabi. Yes, Islamic scholar, white gene of the prophet will come again, like Imam Azam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज, मखदूम सिमना, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, अल्लामा अरशदुल कादरी, हाफिज मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत. They are white gerent of the prophet. ये नाइब नबी है और ये हमें कुरान के बारे में समझाएंगे. कभी भी आपको किसी डॉक्टर ने ये बताया वुजू में 4 फराइज है, गुस्ल में 3 फराइज है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 10 साल पढ़कर आने वाला चंद्रपुर में ये बताएगा आपको गुस्ल कैसे करते हैं, सोहबत के बाद पाक होने का क्या तरीका. ये मदरसा शहाबिया के उलमा बताए, यहां पढ़ने वाले बताए, क्योंकि ये अनवार शरीयत का चैप्टर है, ये बहार शरीयत का पैराग्राफ है, ये फतावा रज़विया का पैराग्राफ है, ये कुरान शरीफ और हदीस शरीफ का पैराग्राफ. लंदन वाले को क्या पता वुजू में क्या फराइज है, ऑक्सफोर्ड वाला तो जाहिल है इस बात से कि इंसान पाक कैसे होता. जो यूनिवर्सिटी वाला बॉडी को पाक नहीं कर सकता वो इंटरनल कैसे पाक करेगा, वो नफ्स को कैसे पाक करेगा. कमी ये आई है कि हम लोगों ने इस्लामिक एजुकेशन को वैल्यू कम देना शुरू कर दिया. नतीजा हमारी निगाहों के सामने. मस्जिद बनेगी, बहुत स्पीड से 1 लाख रुपया मेरी तरफ से, छत मेरी तरफ से, सरिया मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, लेकिन इमाम साहब 2000 का. ये बताइए मस्जिद बोलती है क्या? मस्जिद नहीं बोलती भाई साहब, इमाम बोलता है. दुनिया में इस्लाम मस्जिद नबवी से नहीं फैला है, मस्जिद नबवी के इमाम इमामुल अंबिया मुस्तफा से फैला है. मस्जिद इज साइलेंट, टॉकिंग पर्सन इज इमाम, बोलता इमाम है. इसलिए मस्जिद अगर खजूर की पत्तियों, खजूर की शाखों से बनी हुई हो तो चलेगा. इमाम नाइब मुस्तफा होना चाहिए, इमाम एक्सपर्ट होना चाहिए. आप रोजाना फज्र की नमाज में मस्जिद में जाए, जोहर की नमाज में जाए, असर में जाए, मगरिब इशा में जाए, मस्जिद एक मसला भी नहीं सिखाएगी आपको. क्या हराम है क्या हलाल है ये मस्जिद बताएगी, इमाम बताएगा. इसलिए मस्जिद कमजोर हो, इमाम स्ट्रॉन्ग तो मस्जिद स्ट्रॉन्ग हो जाए, मस्जिद का मकसद स्ट्रॉन्ग हो जाए, मस्जिद का पर्पस स्ट्रॉन्ग हो जाए, मस्जिद का टारगेट स्ट्रॉन्ग हो जाए. हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मदरसे में कितने बच्चे आ रहे हैं, कभी इस पे गौर किया? जो हालात है इसके जिम्मेदार यहां की गवर्नमेंट है, एसपी कलेक्टर का डिपार्टमेंट है क्या? वो हमको आके बताएंगे क्या कि कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस शरीफ पढ़ो? मेरे भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, हम ही इसकी फिक्र करें. वर्ल्ड का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है आप लोग को पता है? जामे अजहर मिस्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा. मगर आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आपको हैरत होगी और आपको लगेगा कि आई कैन डू इट, बट आई डू इट. वर्ल्ड का सबसे बड़ा मदरसा जामे अजहर है, वो एक मस्जिद थी. इमाम साहब बहुत अच्छे थे दर्स के हिसाब से. वो जब दर्स देते थे तो लोग भी आके सामने बैठने लग जाते थे. अभी जलसा हुआ, सैयद हिदायतुल्लाह साहब ने हमको दावत दी, आप लोगों ने सुना. आपको अगर मेरी बात समझ में आएगी तो आप दूसरों को बताएंगे. ऑफ कोर्स
कि उसने अच्छी बात बयान की। वहां दर्स हो रहा था, वो नमाजी लोग दूसरे को बताने लगे जाके तो दर्स अच्छा हो रहा, बातें अच्छी बयान की जा रही, बाजू वाले भी आने लगे और दूर से आने लगे और दूर से आने लगे। तो मस्जिद के बाजू में एक हुजरा बनाया गया, ठहरने का मकान बनाया गया, और इस तरह जामे अजहर जामियातुल अजहर में कन्वर्ट हो गया। मस्जिद से मदरसा इस तरह बन गया। फर्क यह है कि वहां इमाम साहब के हाथ में कुरान होता है तो मुक्तदी के हाथ में भी कुरान होता है। इमाम साहब के हाथ में बुखारी शरीफ होगी तो मुक्तदी के हाथ में भी बुखारी शरीफ होगी। मगर हमारे यहां ऐसा नहीं होता। इमाम साहब के हाथ में कुरान शरीफ है, मुक्तदी चुपचाप ऐसे बोले। उसकी वजह भी हम ही। मकतब में हमने क्या किया, हम जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो लड़की ढूंढने जाते हैं। पढ़ी लिखी है कि नहीं लड़की? हाँ पढ़ी लिखी है ना। क्या पढ़ी? बोले ग्रेजुएट, बीए किया, 10th पास है, दीनी तालीम है। हाँ है ना दीनी तालीम। क्या है? बोले कुरान शरीफ पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, कोई बोलेगा 5 बार पढ़ ली। बस यही शैतान की चाल है। 5 बार कुरान शरीफ पढ़ने को वो दीनी तालीम समझा रहा। दीनी तालीम अंडरस्टैंडिंग का नाम है, न कि ओनली रीडिंग का नाम है। झूठ बोलना हराम है। ये कुरान पढ़ने से समझ में आएगा कि समझने से समझ में आएगा? थिंक अबाउट इट। तकब्बुर करना हराम है। ये रीडिंग से समझ में आएगा या अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगा? इसलिए सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना ये दीनी तालीम नहीं है, समझना दीनी तालीम। और नहीं समझना आता है तो उर्दू में समझाया हुआ है। जैसे तामीर अदब अव्वल दो सो, बहार शरीयत, दीनी तालीम उर्दू में, उसमें पढ़े। अब बेटी देख, बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाए तो ये मत पूछे कि कुरान शरीफ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये पूछे कि बहार शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, उर्दू आती है कि नहीं आती है। क्योंकि उर्दू आएगी तभी मसाइल आएंगे समझ में। आलिम का कोर्स कंप्लीट तो कर दी नहीं। अपने बच्चों को सिर्फ कुरान शरीफ देखकर पढ़ना मत सिखाया, उसके साथ साथ में उर्दू भी सिखाए। अगर आपकी बेटी, आपका बेटा अरबी के साथ में उर्दू सीख लेगा तो इस्लाम का संविधान सीखेगा, इस्लाम का नियम सीखेगा, इस्लाम का सिस्टम सीखेगा। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या नाजायज है, क्या मकरूह तहरीमी है, क्या कुफ्र है, क्या शिर्क है, ये उस वक्त सीखेगा जब उसको उर्दू आए। और ये माहौल कब होगा? ये मदरसा शहाबिया में अपनी बच्ची को भेजे, बच्चा को भेजे, अरबी के साथ साथ में उर्दू। और अगर लड़की स्कूल पढ़ी है उर्दू नहीं पढ़ी है तो शादी मत करे, उसे छोड़ दे। मेरे यहाँ ऐसी बहू नहीं चलेगी जिसको सिर्फ इंग्लिश आती हो, अरबी आती हो, उर्दू नहीं आती हो, ऐसी बहू मत लाया। अगर ये मिजाज बना लेंगे आप ना तो हर माँ बाप अपनी बेटी को उर्दू पढ़ाना शुरू कर दें। और यही तो हम चाहते हैं। That's point। माहौल हम बनाया, खराब हमने किया तो सुधारेगा कौन? अगर आपने ये मिजाज बना लिया कि लड़का को भी लड़की उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक वो अरबी के साथ में उर्दू नहीं पढ़ा, और लड़की को भी उस वक्त तक बहू नहीं बनाएंगे जब तक वो अरबी के साथ में उर्दू नहीं पढ़ी। 1 साल के अंदर चंद्रपुर की हर बच्ची अरबी के साथ में उर्दू पढ़ना सीख लेगी, हर बच्ची। और जब अरबी के साथ में उर्दू पढ़ना सीखेगी तो वो जींस पैंट पहन के मार्केट में नहीं चलेगी, नकाब फातिमा ज़हरा लगा के मार्केट में चलेगी, ओढ़नी ओढ़ के चलेगी। वो मोबाइल पे गंदी चीजें नहीं देखेगी, वो मोबाइल पे सूरह यासीन शरीफ सुनेगी, सूरह मुज़म्मिल सुनेगी, सूरह ताहा सुनेगी, सूरह यूसुफ पढ़ेगी और सुनेगी, मीनिंग पढ़ेगी और सुनेगी, नाज़ शरीफ सुनेगी, फिक्र शरीफ सुनेगी। ये माहौल हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बिगाड़ा हमने। मेरे भाई,
आज भी दुनिया मोमिन से खाली नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप में हर फर्द मोमिन कामिल है, मगर चंद्रपुर मोमिन कामिल से खाली भी नहीं, वरना जलजला आ जाता, तबाह बर्बाद हो जाते सब, अल्लाह का अजाब आ जाता। गैरत ईमानी अभी जिंदा है। फिर जामे अजहर मिस्र में क्यों है, जामे अजहर चंद्रपुर में क्यों नहीं? यही सोचने की जरूरत है। उसको भी एक इंसान ने बनाया, तो हम भी तो इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी। जामे अजहर अगर मिस्र में बन सकता है तो चंद्रपुर में क्यों नहीं बन सकता, त्रिपुरा में क्यों नहीं बन सकता? कमनसीबी यह है कि बनाए कौन? हर फर्द सोचता है कि हाँ होना चाहिए, बड़ा मदरसा बनना चाहिए, सैयद हिदायतुल्लाह इसको और बड़ा करे, हर फर्द सोचता है, मगर मैदान में नहीं उतरता है, कदम आगे नहीं बढ़ता है। इंसान सोचता है कि अल्लाह का वली चंद्रपुर में होना चाहिए, मगर अपने आप से नहीं शुरू करता है, दूसरों से उम्मीद रखता है ये वली हो जाए। हर इंसान सोचता है पांचों वक्त का नमाजी यहां भी होना चाहिए, अपने आप से नहीं शुरू करेगा, दूसरों से उम्मीद रखेगा। चंद्रपुर के मोमिन भी सोचते हैं कि यहां झूठ कोई नहीं बोले बहुत अच्छा रहेगा, मगर खुद से नहीं स्टार्ट करेगा, सच को लाजिम पकड़ के झूठ बोलना छोड़ेगा नहीं, दूसरों से उम्मीद रखेगा। अच्छा, हर दूसरा दूसरे से उम्मीद रखता है, नतीजतन झूठ खत्म ही नहीं होता, जामे अजहर बनता ही, लोग एजुकेटेड होते ही, नमाजियों की तादाद बढ़ती है, उम्मीद तो सबकी, मगर खुद से। ऐसे ही हो गया कि राजा ने सोचा कि मैं दूध का तालाब बनाऊं, प्रजा को, पब्लिक को ऑर्डर किया कि तालाब खोदो, तालाब खोदा। आकाश सब लोग अपने अपने घर से एक जग दूध लेकर के आएंगे, दूध का तालाब बनाने जा रहा हूं। तो सबने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे, एक जग मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा? इत्तेफाक से सबने यही सोच लिया, और सेम यही पोजीशन अभी है। मदरसा शहाबिया को सब लोग तो मदद कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? नतीजतन 1 रुपया भी नहीं आता, क्योंकि सब यही सोच लेते हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मौका। बुराई की तरफ शैतान हर फर्द को ले जाता, हर फर्द को ले जाता। ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, 100 आदमी इधर खींचने वाले हैं और एक आदमी इधर खींच रहा, मैं किधर जाऊंगा? सोचे, ये बायां हाथ, ये दायां हाथ, 100 आदमी मुझे इधर खींच रहा पकड़ के, और एक आदमी इधर खींच रहा, मैं किधर जाऊंगा? 100 आदमी की तरफ। इंसान की फितरत है ना, जिस्म की ताकत होती है ना, 100 आदमी की तरफ जिस्म जाए, एक आदमी की तरफ नहीं जाए। गुनाह की तरफ मोमिन को ले जाने वाले 100 आदमी, और नेकी की तरफ बुलाने वाले सैयद हिदायतुल्लाह जैसे एक आदमी होता है। हर जगह का यही हाल है वैसा। फॉर एग्जाम्पल, चैनल है, गुनाह की तरफ ले जाने वाला, अखबार है, गुनाह की तरफ ले जाने वाला, मोबाइल है, गुनाह की तरफ, पड़ोसी है, गुनाह की तरफ ले जाने वाला, स्कूल का टीचर गुनाह की तरफ ले जाने वाला, स्कूल के फ्रेंड्स गुनाह की तरफ ले जाने वाले, घर में भाई बहन गुनाह की तरफ ले जाने वाले, माँ बाप गुनाह की तरफ ले जाने वाले, नेबर पड़ोसी गुनाह की तरफ ले जाने वाले, 100 आदमी गुनाह की तरफ ले जाने वाले। एक इमाम साहब है जो कहते हैं झूठ मत बोलो, हराम है, तो इंसान उधर जाएगा या उधर जाएगा? इसलिए कहते हैं माहौल बनाए, माहौल खुद टीचर है अपने आप। मैं स्कूल के टीचर गुनाह की तरफ की मिसाल इसलिए दी कि वो जब छुट्टी लेते हैं तो ये कहते हैं कि तबीयत खराब है, और बेटी की शादी रहती है, वो समझते हैं कि ये जायज है, शरीयत में ये हराम असल हराम है। बच्चों पे साइड इफेक्ट ये पड़ता है कि झूठ बोलना जायज है। इसलिए रियली एजुकेशन, ओरिजिनल तालीम जिससे रूह बिल्ड होती है,
इंसान तरक्की करता है वो सिर्फ मदरसा 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 में जाएगा। वो मदरसा जहां पर काल अल्लाह व काल रसूल की बातें होती है, क्योंकि बुखारी में झूठ नहीं है, मुस्लिम में झूठ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक पीएम आता है तो चेंज करने की बात करता है, दूसरा आता उसको बदलने की बात करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका को एक आता बदलने की बात करता, दूसरा आता उसमें तरमीम करता है, क्योंकि बनाने वाला उसका इंसान होता है, बनाने वाला मैन होता है, वीमैन होता है, ह्यूमन होता है। मगर बुखारी और मुस्लिम और कुरान और हदीस वो कयामत तक रहेगा, नबी के जमाने से अभी तक, क्योंकि इस्लाम को बनाने वाला कोई और नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की जात। वो अल्लाह है जो इस्लाम को नाजिल किया है। कुरान किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। सब लोग बोले किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। अल्लाह है और कयामत तक है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसलिए कुरान को चेंजिंग की जरूरत नहीं। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको पकड़िए ना, जो चेंज हो रहा है उसको क्यों पकड़ेगा? जो चेंज नहीं हो रहा है होली कुरान। इसलिए मेरे भाई मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, तालीम, मदरसे की तालीम का कमाल बताता हूं मैं। एक मां जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। क्या किया जाए? सपोज दैट उस जमाने का एमबीबीएस, क्या किया जाए का ऑपरेशन, एमडी क्या किया जाए का ऑपरेशन, जिंदा को मुर्दा से अलग करो। आपके दिमाग में भी यही सवाल जवाब आए। बैरिस्टर, कलेक्टर, कहा एमडी की बात मान लो। कॉन्वेंट वाले आपकी क्या राय है? कहा एमडी की बात मानो ना, हमसे क्या पूछ रहे? क्रिश्चियन मिशनरी के फॉलोवर्स और स्कॉलर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर? कॉपरेट इट, ऑपरेशन। वहीं पर एक इमाम साहब भी थे, मस्जिद के, मदरसा के, दीन के इमाम साहब। गांव वाले इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब फला के घर में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, कमर दोनों की जॉइंट है, और लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेट करो, या बोल रहे हैं कि दोनों को दफन कर दो। एक डॉक्टर ने यह मशवरा दिया दोनों को दफन करो, क्योंकि जिंदा को मुर्दा की वजह से तकलीफ हो रही है, दोनों को दफन करो। आपकी क्या राय है? देखिए गांव वाले कितने अच्छे लोग थे, इमाम से मशवरा जरूर करते थे। वो इतने अच्छे लोग थे कि सिर्फ जुमा की नमाज में नहीं कहते थे पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक पीछे इस इमाम के ही रहा करते थे, इमाम के ही नक्शे कदम पे चलते। सोते भी थे तो इमाम के नक्शे कदम पे सोते थे, जैसा इमाम बताते वैसे ही सोते थे कि दोनों हाथ को ऐसे नीचे करना, इस तरह के ऊपर से देखने में लगे मोहम्मद बना हुआ है, ऐसे सोना। और गांव वाले उनकी बात मानते। गांव वालों ने इमाम साहब से पूछा आपकी क्या राय है हजरत? इमाम साहब फरमाते हैं दोनों को दफन करना हराम हराम हराम, ऑपरेशन हराम हराम हराम, सपोज दैट। गांव वालों ने कहा what do you say? You have any painkiller? Medicine? You have any cotton and bandage? You have any calcium? You have any needle? Take? Staging thread? Nucleotide and hydrogen? You have any solution? Say haram haram haram. इमाम साहब कहते यस यस यस, आई हैव अ सॉल्यूशन बेटर मोर देन बोथ। दो कब्र खोदो, इमाम साहब का सॉल्यूशन देखो।
दो कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रखो। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दें और जिंदा को कब्र में दूध पिलाएं। गांव वाले ने इमाम साहब की बात मान ली, क्योंकि गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम की मुखालफत नहीं करते। बदल दे इस इमाम को, मेरी बात नहीं मानता, हटा इसे। इतने गंदे नहीं थे वो लोग। वो ये देखते थे कि अल्लाह की बात नहीं मानता तब हटा, मेरी बात नहीं मानता है तो मेरी बात तो मेरी बीवी भी नहीं मानती है, तो उसको क्यों नहीं भगाते? मेरा बेटा भी नहीं मानता, उसको क्यों नहीं भगाते? आप बेटा को बोले कुर्ता पजामा टोपी पहनो, फज्र की नमाज पढ़ो, वो नहीं पढ़ता है, उसको तो नहीं भगाया आपने। थिंक इट। इमाम साहब की बात मानते हैं, दो कब्र खोदते, एक में जिंदा को रखा, दूसरे में मुर्दा को रखा, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाली, जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चंद डेज के बाद, सम डेज आफ्टर, मिट्टी ने अपना काम कर दिया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया मिट्टी ने। उस जिंदा बच्चा को निकाल लिया गया कब्र से। ये इलाज जिस इमाम ने बताया था, दुनिया उसे साबित का बेटा नुरमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह। समझ में आया आप लोग को? वो कौन इमाम थे? इमाम आजम अबू हनीफा। मैं समझता हूं मेरी गुफ्तगू बुनियादी तौर से हो गई, अब मुझे अपनी तकरीर खत्म करनी चाहिए। ये जरूर समझ में आ गया आप लोगों को कि बेसिक चीज है इमाम से जुड़े रहना और बच्चे को इंग्लिश के साथ में उर्दू भी पढ़ना। ये आज की गुफ्तगू का बेसिक फंडा होगा, जो हमारे जिस्म और रूह दोनों की प्रोटेक्टिंग की जमानत देगा। बॉडी और सोल बोथ। फ्यूचर हमें नहीं समझ में आएगा और मैं बयान भी नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल देके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि इमाम साहब बैठे हुए थे और एक बच्चा मार्केट में काम करने जा रहा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बच्चा ने देखा इमाम साहब बहुत अच्छे और पढ़ाते हैं लोगों को, काम की बजाय जाके इमाम साहब के पास बैठ गया, पढ़ने लग गया। चंद दिनों के बाद में उसकी मां आ गई इमाम साहब से लड़ने झगड़ने, मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो खाते हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप मेरे बेटे को? खाएंगे क्या हम लोग? तो इमाम साहब का जवाब सुनो, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूजा बिदुहनिल फुस्तुक। ए खातून, आपके बेटे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बेटा फ्यूचर में, इन फ्यूचर, रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। कंफ्यूज्ड, शी इज कंफ्यूज्ड। इमाम साहब कैसा दावा कर रहे हैं, लगता पागल हो गए। रोगने पिस्ता में काजू, राजा का खाना, बादशाहों का खाना, अलिफ बा ता सा पढ़ने से कद ज़हब अक़लुहु। वो खातून बोलती है कि मौलाना पागल हो गया, बहकी बहकी बातें कर रहा। लेकिन वो मौलाना साहब थे सैयद शहाबुद्दीन की तरह, अल्लाह वाले नेक थे। उन्होंने कहा, ये बताइए मोहतरमा, आपके महीने का कितना खर्च है? कहा इतना दिरहम। कहा हर महीने की 1 तारीख को मुझसे ले जाइएगा, हर महीने की 1 तारीख को मुझसे ले जाइएगा। हर महीने की 1 तारीख को खातून लेने लग गई, टाइम से पैसा लेने आ जाती, लेकिन बच्चा पढ़ने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, वो बच्चा अपने वक्त का काज़ी क़ुज़ात बन गया। काज़ी क़ुज़ात किसको कहते हैं पता है आपको? चीफ जस्टिस। और ब्रेकफास्ट के टाइम दस्तरखान बिछा, एक कटोरा में रोगने पिस्ता दिया खलीफा ने और दूसरी प्लेट में काजू रख के पेश किया।
जब ये रोगन पिस्ता और काजू देखा उस बच्चे ने तो मुस्कुराने लगा, उसे याद आने लगी माँ का चिल्लाना और इमाम का मुस्कुरा के जवाब देना, माँ का पागलपन कहना और इमाम का सब्र तहम्मुल से जवाब देना और अटल रहना। खलीफे उस बच्चे की मुस्कुराहट से जाहिल था। उसे क्या पता थी कि मुस्कुराहट का तेवर बोल रहा है कि मेरा इमाम कितना इल्मे गैब रखता था कि सालों पहले उसने देख लिया कि दस्तरखान पे मुझे रोगन पिस्ता और काजू मिलेगा। कितना इल्म रखता था मेरा इमाम। खलीफा नाशना था, बच्चा भी नाशना था, मगर बच्चे को इमाम साहब की तालीम पे भरोसा है और इमाम साहब को अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा है। दुनिया उस बच्चों को इमाम अबू यूसुफ के नाम से याद करती है और उस मौलाना साहब को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। काजी उल-कुज़ात पूरी दुनिया में पहली बार चीफ जस्टिस के पोस्ट पर इमाम अबू यूसुफ बैठे थे। वो इमाम आजम के स्टूडेंट है, शागिर्द। इसलिए मेरे भाई, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा कौन सा आप लोगों को पता है? जनरल नॉलेज में नोट कर लीजिएगा, अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर। ये हिंदुस्तान में सुन्नियों का सबसे बड़ा मदरसा है। अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर हाफिज मिल्लत ने बनाया। यूपी आजमगढ़। अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर हाफिज मिल्लत ये शागिर्द है अल्लामा सदरुल शरियत के, जिन्होंने बहार शरीयत लिखी है। अल्लामा सदरुल शरियत ने बहार शरीयत लिखी है और अल्लामा सदरुल शरियत शागिर्द है आला हजरत के, जिन्होंने फतावा रज़विया लिखा, कंजुल ईमान लिखा, जो मुजद्दिद थे, जिन्होंने सुन्नियत की पहचान बताई भारत में। अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर जब बना रहे थे तो चंदा करने गए। सैयद साहब भी चंदा करने जाते होंगे। आप में से कोई 5 रुपया मेरी तरफ से ले लीजिए, 50 रुपया ले लीजिए। 40 साल तकरीबन पहले की बात है। अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में चंदा करने के लिए गए तो एक साहब घर में गए और 37,500 रुपया उस वक्त 40 साल तकरीबन पहले वो ला के पूरा पैसा दिया हाफिज मिल्लत। और हाफिज मिल्लत से ये कहा, हजरत घर में जितने पैसे थे सब के सब ला के रख दिया, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं है, न जेब में, न बैंक में, न घर। हाफिज मिल्लत तो इनकार कर दी, बोले ना इस तरह मैं चंदा नहीं करता, थोड़ा सा तुम रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे। पूरा का पूरा दे देना, घर वालों को मिस्कीन और यतीम छोड़ देना, ये अच्छी बात थोड़ी है। थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा रख ले। उन्होंने कहा ना पूरा लेना पड़ेगा। कहा नहीं मैं ले लूंगा, कहा नहीं लेना पड़ेगा। मुकालमा बहसें होने लगे। हाफिज मिल्लत तैयारी नहीं हुए लेने के लिए। तो उस आदमी की दलील देखिए, कितनी भारी दलील थी उस आदमी अपने दावा को साबित करने के लिए। उस शख्स ने कहा कि ये बताइए हाफिज साहब, जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था और अबू बकर ने बटन भी काट के दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया था। घर का सब कुछ तो दिया ही दिया, कुर्ते का बटन भी काट के दे दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया। आप कौन होते इनकार करने वाले? लाजवाब हो गए आपसे मिलकर, रोते रोते ले लिए, घर चले। कल होके उस आदमी जिसने 37,500 रुपया दिया, उसकी बीवी की तबीयत खराब। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। कौन सा डॉक्टर था? स्कूल वाला, लिटिल फ्लावर वाला, कॉन्वेंट वाला, क्रिश्चियन मिशनरी वाला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाला। मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने चेक किया और दवाई लिखी।
और 7 रुपये चेकिंग फीस भी और मेडिसिन फीस भी। कितने पैसे लिए? 7 रुपये की दवाई की, उसमें चेकिंग फीस भी इंक्लूड। वो साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तो मैं दे दूंगा। 37,500 की खबर पूरे मुबारकपुर में फैल गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी रकम थी उस जमाने की। उसने 37,500 दे दिया हाफिज जी को 37,500 हाफिज मिल्लत को हाफिज जी कहते थे, जैसे यहाँ से साहब कहते हैं। डॉक्टर को भी पता था 37,500 दे दिया इसने। डॉक्टर पेपर बदल के बात करता है कि मदरसे में चंदा देने के लिए, हाफिज जी को देने के लिए 37,500, बीवी के इलाज के लिए 7 रुपये नहीं देगा। ये जुमला ताना सुनना ही था कि मेडिसिन को टेबल पे फेंकता है, बीवी की कलाई पकड़ता है और कहता चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो गया। कलाई पकड़ के ले गया हाफिज मिल्लत की बारगाह में, रोने के गिराने लगा। हाफिज मिल्लत ने कुरान की आयत पढ़ के दम की, जो पावर अल्लाह ने मेडिसिन में नहीं दी है वो पावर वलियों की थूक में आता है। बीवी ठीक हो गई। इस तरह अशरफिया बना, और यह है अशरफिया की पढ़ाई का कमाल। मदरसा शहाबिया भी अशरफिया बन सकता है, वैसे आदमी की जरूरत है, और ये हम में से तैयार होगा, हमें करना होगा। जब भी आवाज दे दीन की खातिर, याद रखिएगा मोदी, योगी, अमित शाह ये लोग नहीं देगा, ये हम ही, हमारी ड्यूटी है। निकाह का सिस्टम हमने बाकी रखा, हम बढ़ाते। उन लोगों ने तो लिविंग रिलेशनशिप को भी अलाउ कर दिया। पता नहीं आपको हिंदुस्तान का संविधान क्या हुआ? अमेरिका का संविधान में क्या लिखा हुआ? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बरसों रहेंगे, चाहिए तो बच्चा लेना चाहिए तो बच्चा भी ले लेते हो, शादी भी नहीं होती। निकाह का सिस्टम हम लोगों ने जिंदा रखा, और यही वजह है कि चंद्रपुर में हरामी बच्चे नहीं पाए जाते, क्योंकि निकाह होगा। अगर आपने मदरसे बंद कर दिए तो बच्चे हरामी पैदा होंगे और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मदरसे बंद होंगे तो आलिम नहीं होगा, आलिम नहीं होगा तो हलाल और हराम बताएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन में तो अलाउ है, लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं, रोकता मदरसा ही है, इसलिए टारगेट पे भी मदरसा रहता है। ये बुनियादी बातें थी हमारे और आपके लिए। मुझे यकीन है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।